कि जिस प्रकार प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, वैसे ही ग्रामर सीखी नहीं जाती है, आ जाती है। अभी रिसेंटली हमारे कॉलेज से हम लोग ट्रैक पे गए थे कि भाई किसी ना किसी दिन ऐसा एनकाउंटर हो जाता है कि XYZ पर्सन भी अभी हमारे बैच में है क्या। Hi everyone, today in our first podcast episode, with us we have Rohit Rajput, who is also my batchmate at NLU Delhi. We'll start by way of short introduction from Rohit. So please, Rohit. Then my name is Rohit Singh Rajput, and I'm in my second year of like BLLB honors program at NLU Delhi. And as far as introduction is concerned, I did my 12th from a convent school, and I am a PCM background student, so I had a PCM in my 11th and 12th. And to give you a little confidence, let me begin by saying that I never read English till my preparation, till I began my preparation. So this is my background as far as my English language is concerned, because it is the main language as far as LAT is concerned, right? So I did my 12th from PCM. So I gave my first attempt. So I'm a dropper. I gave my first attempt in 2019. So in January of 2019, I decided that law is something, or the CLAT is an exam which I should give out. So I did not have any idea what law is, since I am a first generation law student. So I did not have any great idea about what law as a career all about is. I only had an idea that CLAT as an entrance exam has a syllabus which suits me. So it has logical reasoning, it has maths, it has GK. So these subjects I am comfortable with, and I will prepare something about English intelligence, and I will be going in a government institution. So I will be going in a premier law institute if I am able to clear CAT, and I will be able to secure a package, because the motivation behind doing an engineering is also same, that if I get into an IIT, I will be getting a package. So my motivation to choose law was if I go into a great NLU, I would be getting a package. So I was not very confident initially about giving CLAT. So I chose not to combine the preparation of board and CLAT. So I gave my primary focus to board. I completed I gave my 12th board, and then I took a crash course of 1.5 or 2 months around, and I gave it, and I secured an all India rank of 1900. So it was a confidence booster for me, because I got an idea that I can do something in this exam. So I asked to my mentors, and they said that you can surely take a drop. So I took a drop in 2020, and I gave my CLAT and ELIT. In 2020, I secured an all India rank of 289 in CLAT and 27 in ELIT. So thank you, Rohit, for that. And that's really great. Kudos to you on that great performance. I could totally relate to it. Even I gave my CLAT in 2019. I had a rank of 2400 or something, that I actually remember. And that was totally without any preparation. I had the same mindset that, okay, we'll give the board exam and then we'll focus on CLAT, even if it takes a drop here. I'm also a dropper, so I can totally relate with you. I guess we are in the same boat. So yeah, it's good on that. तो थोड़ा क्लैट वगैरह की बात करने से पहले थोड़ा सा चिल कन्वर्सेशन, लाइक हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस एट एनएलयू दिल्ली सो फार, ऑल्दो आई नो इट हैज बीन वर्चुअल, और हम दोनों रिलेट कर सकते हैं, बट कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? as you said, to be honest, it has been online so far. So virtual experience is good. Like, I can't comment much on that. It's fine. It's going great since I'm at home. But I am missing on something. I'm missing on some great thing. I'm missing on my hostel days of first year, second year, and all. So it is a little like वो थोड़ा मिस हो रहा है, मतलब वो चीज़ का नुकसान है. बाकी एज फार एज वर्चुअल ऑनलाइन लाइक कॉलेज कल्चर इज कंसर्न, वो थोड़ा आइडिया लगा है वर्चुअल मोड में भी कि इट इज़ ग्रेट. द कल्चर इज़ वेरी ग्रेट, सीनियर्स आर वेरी ग्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन इज क्वाइट सपोर्टिव. हॉस्टल खोलने में नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों में, एकेडमिक वगैरह में, तो वहाँ पे let's not touch the aspect of hostel. that's very messy है. But yeah, so like how has been the experience with batchmates? कितने understanding है, कितने friendly है? Batchmates are very very great. Like they are very kind. So like वो understanding nature है उनका. So like to be honest, मुझे अभी English I do not have any great confidence in speaking English. So जितने मुझसे मैं एक hesitate करता हूँ थोड़ा conversation करने में, लेकिन जितने batchmates मिले, they are very supportive. They understand कि from where I come, और जो बैकग्राउंड इंग्लिश स्पोकन का थोड़ा इशू रहता है, तो दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग दैट. और बाकी दोस्त यार तो बहुत ही बढ़िया है यार. As English का भी like काफी अच्छा लगे. Really liked how we have a BOB system, which is basically buddy over batches. और जैसे बहुत सारे लोग शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं ना, you do not reach out to a lot of people. and जब वर्चुअल सेमेस्टर का सिनेरियो होता है, तो क्या होता है कि we do not know कि हमारे जैसा कोई सेम इंसान कहाँ बैठा है, क्योंकि he is also an introvert, she is also an introvert, they are an introvert, they could be sitting in any corner. एक और एडवांटेज है कि यार द स्टूडेंट्स जो बैचमेट्स हैं, दे आर वेरी लाइक बहुत नॉलेज बहुत शानदार है उनका. तो जो पीयर लर्निंग है, बहुत मतलब बहुत वो मिलता है मेरे को, तो की इंस्पिरेशन टाइप, क्योंकि ट्रस्ट में यार मतलब बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं साथ में बैच में. एक तो इंटरव्यू ले रहा है, और बाकी भी और बहुत है, तो सब बहुत बढ़िया है नॉलेज के. तो वो होता है. Like how has been your experience at competitions? Like have you tried mooting, ADR or anything? Mooting तो I remember. ट्राई करिए.
फर्स्ट ईयर में तो ट्राई नहीं करी, सेकंड ईयर में आई ट्राइड मूटिंग एंड आई गेव IMS, तो नालसा UNHCR अलॉट हुआ है एंड आई विल द प्रॉब्लम विल बी गोइंग टू रिलीज इन February, so it is in the process. And as far as ADR is concerned, I gave my try at a negotiation, but I was not able to get well, I it. hope that you will be doing good at it and all the best for the moot as well. तो ये तो हो गया, बट हम लोग ट्रैक पे गए थे, which is a very fun aspect, and I guess this was for the first time, and I haven't heard something similar happening in any other NLU. So this was a really good initiative and you went on that. Although I had my internship, so I wasn't able to go. But कैसा experience था केदारखंड? बहुत मस्त था. I like the trek was amazing. The people were amazing on the trek, so obviously the trek went amazing. So it was an initiative by the sports committee. So they decided कि the students who are interested can go to a trek at Kedarkanta in like Dehradun, around Dehradun. So वहाँ पे I got to meet many new faces जिनसे पहली बार मिला था मैं, and the people were very amazing, like बहुत ही शानदार लोग हैं. And as you said कि जो virtual में अपन connect नहीं कर पाते, वहाँ पे जब उनसे मिले in person, तो फिर वो connection बहुत बढ़िया बना. फिर समझ में आया कि अपन क्या मिस कर रहे हैं, मतलब honestly. चलते चलते let's go on another trek very soon, if not to hospital. So to go about CLAT, I guess there are like 3 months left for CLAT preparation right now. अगर COVID mess up नहीं करता है, जैसा हमारे सिनेरियो में 2020 में काफी अच्छा किया गया था, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक मोमेंट पे आके हम लोग परेशान हो गए थे कि अब और ज्यादा टाइम नहीं चाहिए. ठीक है, तो आई गेस वो सिनेरियो नहीं आना चाहिए इस बार. बाकी कोविड का तो कुछ नहीं कह सकते. तो अगर गोइंग बाय 3 month preparation, how do you think somebody should start from the basics? And then we'll take over the second part, basically for the people who have actually prepared so far and how should they boost their score. So starting by someone who want to start right now, is it possible for them to crack it, and what can be done on their part? It's possible, like nothing is impossible as the saying goes, but like it would be a tough task in 3 months, to be very honest. Like 3 months में comprehension improve करना, to work on the GK, to work on quant, to work on logical skills, critical reasoning skills. It would be a difficult task, but it would be like it is possible to be, like we can say that it is possible. So to begin with, let's take it as like कि we will go section wise. In section wise, we will be first doing like what should a person do who is starting his preparation now, and in the same subject, what should a person do to boost his performance, right? To begin with English, if you are starting from basic, so the first thing you should go is you should try to improve your comprehension. You should not jump on the grammar initially. It's my opinion, and opinion can vary. If you talk to different mentors, if you talk to different topics, they will give you different suggestions, they will give different advice what worked for them. But I'm going to say what worked for me, and the thing can be different for what worked from Anurag as well. So what I'm saying, try to practice it. If it works for you, then go ahead with it. To begin with English, you should begin with comprehension. So if you have an English background, then you can surely begin with the Hindu. You can begin with the passages of the Hindu. You can try reading the Indian Express or the Economist. So you should try going with non-fiction. Now it is not the time that you are going to read fiction book and then it will help improving your comprehension. But you should stick to weekly newspapers, magazines, and the other non-fiction sources. So the thing is comprehension plus vocab. That's the key for English. And the second part will come to practice. So initially you have to build your core skills in this, that is the comprehension. So for that you should do reading, you should do vocab. Do not jump to grammar right now. Begin with them and try to do passages. So जो GMAT के sources हैं, LSAT, if you're good with English, you can go to GMAT and LSAT sources. If you are like you have not a great background in English, then you can stick to your coaching passages or the easier ones as far as English passages are concerned. And you should begin with them. और जो दूसरी चीज है grammar की, it is for similar for both who are preparing now and who are preparing from the like past 1 year. So grammar के साथ सीन ये है कि you will get grammatical sense by reading comprehension. तो comprehension ईमानदारी से करोगे तो you will develop a grammatical sense. तो वहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये नहीं रहेगा कि आपको रूल याद करना है कोई, वो कॉम्प्रिहेंशन के साथ एक ग्रामेटिकल सेंस डेवलप होगा, उससे आंसर हो जाते हैं. और अगर रूल्स का आपको इतना ही है तो फिर उसमें लिमिटेड टॉपिक्स करो, आर्टिकल्स कर लो, प्रीपोजिशंस कर लो, थोड़ा मॉडल्स कर लो, प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब्स कर लो, ये सब कर लो. बाकी ग्रामर को अलग से इतना ज़्यादा टाइम मत देना. उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पैसेज में रेगुलरली दिखेंगे, उनके रूल्स आप एक बार ट्राई कर सकते हो पढ़ना. बाकी अगर आप कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर रहे हो तो यू विल डेवलप अ ग्रामेटिकल सेंस ओवर टाइम, तो उससे ग्रामर के आंसर्स आ जाते हैं. तो ग्रामर इज नॉट एन इशू एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग रेगुलरली एंड सिंसियरली ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी. तो ये है इंग्लिश का सीन. Yeah, that's a really good advice यार. Like अगर हम देखें एज अ होल, तो अब तो हमारा क्लैट का पेपर हो चुका है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है. और अगर हमें इंग्लिश में एक्सेल करना है,
A-Let has now also changed, so that is also a thing. It's very comprehension based, and the reason behind this is कि अगर हम देखें ना एग्जाम सेटर का mindset, when you come to law school, there's a lot of reading that you have to do, right? And you need to actually comprehend what's written there, and that is why they actually want to test people on those skills and not on the rote learning that was the scenario initially. And that's a really really good step, very honestly. But अब अगर किसी को comprehension prepare करना है, अब it's like a big role. इसमें आपके hurdles बनते हैं vocab. अगर आपको vocab आती है, आपको comprehension बहुत smoothly समझ आएगा, आप वो hurdles को easily पार कर, ठीक है. And as said by Rohit, grammar का सीन ऐसा है, even I didn't prepare. Like at a lot of times when I had a question in A-Let कि भाई ये grammatically आप correct कर दो, I had that gut feeling that okay this answer is correct, but I didn't exactly remember कि ये rule कहाँ से आया. And that came because हम लोगों ने वो reading इतनी करी थी कि हमने उसकी grammatical sense develop कर ली. We didn't know कि x plus y plus z has to be like this, but we knew कि यार ये चीज हमें खटक रही है और ये चीज इस तरह से सही है, which is basically the grammatical sense that will develop. कि तुम्हारा वो विजन हो जाएगा, वो एक तरह का चश्मा लग जाएगा आंखों पे कि भाई ये चीज ग्रामेटिकली सही नहीं दिख रही है और ये ग्रामेटिकली सही हमें दिख रही है. I guess that is what Rohit also meant to say. It was beautifully explained to me by my sir in one line. He said कि जिस प्रकार प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, वैसे ही ग्रामर सीखी नहीं जाती है आ जाती है. तो I got an idea कि हाँ भाई ग्रामर तो समय के साथ आएगी. ऐसे ही जैसे कि फिक्शन बुक्स का जिक्र हुआ, तो मेरे को भी बहुत लोगों ने इनिशियली रिकमेंड किया कि भाई आप फिक्शन बुक्स रीड करो या फिर आप नॉन फिक्शन रीड करो, बट आई डिडंट गेट अटैच्ड टू दिस थिंग. मैंने ट्राई किया, बट आई गेस जो मैंने फर्स्ट बुक भी स्टार्ट की थी उसके 10 पेज पढ़ के मैंने छोड़ दिया. मैं हर बार स्टार्ट करता तो मैं पहले 10 पेज पढ़ता था और उसके बाद छोड़ देता था. आई गेस मेरे को उसके पहले 10 पेज भी रट गए होंगे क्योंकि मैं कभी उसको उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाया. ठीक है, तो ये चीज ऐसी है कि भाई आई रिकमेंड कि न्यूज़पेपर इज द की. अगर आपको क्लैट का पेपर करना है, आपको कॉम्प्रिहेंशन सीखना है, आपको जीके सीखना है, जब आपको सारी चीजें एक जगह मिल रही है, आपको एक खिचड़ी पकी पकाई मिल रही है ना, तो आप क्यों इधर उधर भटक के क्यों कभी नमक खाने जा रहे हो, कभी कुछ खाने जा रहे हो, है ना. तो वो चीज हमें न्यूज़पेपर में मिल रही है, अपना ब्रह्मास्त्र है. तो आई गेस न्यूज़पेपर इज द की. कॉम्प्रिहेंशन के लिए पढ़ो. तो आई गेस दैट्स ऑल. प्रॉब्लम है ना फिक्शन में, ये होता है कि व्हेन वी जब फिक्शन में कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो फिर वो स्टोरी समझ में आने के फिर मैंने एक दो पेज स्किप भी कर दो तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्टोरी में. तो जो कंसंट्रेशन चाहिए रहता है कि जो एक्टिव रीडिंग चाहिए रहती है, मतलब वर्ड टू वर्ड जो आर्गुमेंट समझना, उसको प्रीमाइस समझना, वो सब समझना, वो नॉन फिक्शन में और स्पेशली ओपिनियन पीसेस में वो बहुत अच्छे से होता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अब अगर आपके पास आरसी आ रही है, आपके पास इकोनॉमिक्स रिलेटेड भी आ सकती है, बिजनेस रिलेटेड भी आ सकती है, साइंस एंड टेक भी आ सकती है, जो वैरायटी आपको न्यूज़पेपर में मिलेगी बट एक फिक्शन में नहीं मिलेगी. अगर आप एक फिक्शन के 300 पेजेस पढ़ते हो, उसका जॉनर एक होने वाला है. बट अगर आप एक न्यूज़पेपर को ऊपर से नीचे पढ़ते हो ना, आप साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो, आप बिजनेस पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप बहुत कुछ पढ़ रहे हो. लाइक फॉर मी वेरी ऑनेस्टली बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स यूज्ड टू बी द एस्पेक्ट जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं था. ठीक है, तो अगर मेरे को वो सेम 300 वर्ड का पैसे अगर मेरे को बिजनेस का पढ़ना होता था जिससे मैं समझ सकूं, मेरे को उसमें मे बी 1.5 टाइम्स ज्यादा लगता था इन कंपैरिजन टू समथिंग रिलेटेड टू नेशनल पॉलिटिक्स, लीगल एस्पेक्ट, जिसमें मैं कंफर्टेबल होता. ये कंफर्टेबिलिटी धीरे धीरे डेवलप करी गई, वो ब्रेन सेल्स डेवलप करे गए कि भाई अगर मेरे को कोई चीज समझनी है बिजनेस की तो आई शुड हैव रेड समथिंग ऑन दैट. और उसको नए नए आर्टिकल्स ढूंढने को आप गूगल कर सकते हो कि भाई इतने आर्टिकल्स चाहिए, बट जब आपके पास न्यूज़पेपर है, आप जीके सीख रहे हो साथ साथ, तो व्हाई नॉट डू इट फ्रॉम न्यूज़पेपर. इनकी प्रिपरेशन पहले से चल रही है कि दे आर जिनको परफॉर्मेंस बूस्ट करना है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि रीडिंग पे मत छोड़ना, क्योंकि रीडिंग के साथ ऐसा सीन है कि इफ यू ब्रेक द मोमेंटम ऑफ रीडिंग तो फिर बिल्ड करने में फिर टाइम लगता है. तो रीडिंग करते रहना, वोकैब रिवाइज करते रहना. प्रैक्टिस का एक ऐसा सीन है कि इट विल लाइक इन माय ओपिनियन, नाउ अगेन इट कैन वेरी, कि जिस क्वेश्चन का जिस पैसेज की एक्सप्लेनेशन नहीं हो उसको मत अटेम्प्ट करना आप, क्योंकि वो पूरा फिर आपको होता क्या है कि इफ यू लेट्स से अटेम्प्टेड एन आरसी, उसमें आपको लग रहा है आंसर ए है, अब आपने आंसर ए टिक करा, अब उसमें आंसर दिया डी, अब यू डोंट हैव एन एक्सप्लेनेशन, यू डोंट हैव अ मेंटर टू गो टू एंड लाइक क्लियर दैट आउट. कोचिंग में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसमें आपको कंफ्यूजन में रह जाते हो. फिर यू ट्राई टू रिकंसाइल, लाइक जबरदस्ती करने की कोशिश करते हो कि यार ये डी इस तरीके से हो गया होगा. So I strongly suggest if you want to boost your performance, and it is especially true for those who are beginning as well, कि try only those patches where when an explanation is given. If you're trying GMAT, LSAT, try to do those where explanation is given. Even if your answer is right, read the explanation. Even if your answer is wrong, in that case तो आपको explanation पढ़ना है. And if let's say explanation नहीं दिया है, तो make sure कि there is someone in your coaching who can like explain you that answer. तो explanation is the key. explanation के साथ होता है ये, फिर आपको समझ में आता है कि आप कहाँ गलत थे. और बिना एक्सप्लेनेशन के पैसेज पढ़ना है विल बी लाइक वेस्ट ऑफ टाइम. तो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं हो, डोंट गो विद इट. बिल्कुल सही बात है. अगर आप एक पैसेज पढ़ रहे हो, सेम पैसेज, आई एम श्योर 99.9% चांस है कि वो सेम पैसेज तो नहीं आना. तो अगर आप उसका ABCDE आंसर भी याद कर लोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है. द एग्जैक्ट थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दैट इज कि हमने एक पैसेज ट्राई किया, हमने एक क्वेश्चन किया, उसके जैसे क्वेश्चन हमें बनते रहे. आपको उसकी रीजनिंग नहीं समझ आएगी, क्या फ्यूल डल के किस तरह से इंजन ने इसको प्रोसेस किया है, तो आप आगे नहीं बना पाओगे. तो ये क्वेश्चन रख के क्या कर लो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके बेसिक्स पे जाओ कि भाई एक्सप्लेनेशन में लोगों ने बताया कैसे. So that's very important.
the next section we are going to take is GK. So GK में let's decide a time from which majority of the questions are going to come. So if your exam is in May, then you can we can say कि December से April तक का time is the most important one. December, January, February, March, April. So if you are preparing from a long time ago, like एक साल हो गया आपको 6 months 8 months, if you have done given into your preparation, then you can pick up November as well क्योंकि वो आपने पहले कर चुके हैं. Or even you can, if you're a dropper, you can go to October as well. But if you're beginning your preparation now, so I would strongly suggest to complete December to April time first. Then if you have the time and resources left and the energy left to spend on the current affairs, then you can go to this November and October. But if you are beginning from now, focus on December to April, and if you have given fair amount of time in preparation for your CLAT, then you can begin from October as well. You can, depending upon whether you have studied current affairs or not. As far as current affairs is concerned, there are numerous sources और इतने ज़्यादा हैं कि they will you आप उसमें डूब जाओ. इतने current affairs के sources हैं हर coaching के, हर telegram group के. So I would strongly suggest कि बस 2 sources रखना in current affairs and उनको religiously revise करना. So the 2 sources for me were Drishti IAS, the first one, and second one was my coaching material. तो इसमें होता क्या है कि when current affairs का सीन ये है कि if you made a notes for today, तो इसको आपको वीकली या डेली बेसिस पे 2-3 दिन के बाद में और वीकली बेसिस पे फिर इसको रिवीजन करना है. तो इन न्यू पैटर्न ऑफ क्लैट व्हाट आई विल सजेस्ट इज वन एडिशनल थिंग यू हैव टू डू इज कि अगर आपने कोई करंट अफेयर जो आपने लेट्स से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में बनाया था, अब वो आज पढ़ रहे हो आप, तो ट्राई टू गूगल इट अगेन एंड गो टू द न्यू सेक्शन टू सी कि इसमें कोई डेवलपमेंट हुआ है या नहीं. इवन इफ लेट्स से अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ट्राई टू ऐड समथिंग टू दैट कि इसमें कुछ और ऐड हो सकता था कि क्लैट के सैंपल पेपर को या पास्ट पेपर को देख के यू कैन आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ कि इसमें क्लैट क्या पूछ सकता है. अगर मैं क्वेश्चन पेपर बनाने वाला होता तो व्हाट वुड आई आस्क. तो इसमें क्या होगा कि द मोर द रिवीजन यू डू, द मोर द अमाउंट ऑफ नॉलेज और फैक्ट्स यू कैन ऐड टू दैट पर्टिकुलर न्यूज मटेरियल. और उसमें भी ऐसा होता है कि जैसे if you made let's say news in January 1st December 1st week, तो अब जब उसको आप मार्च और अप्रैल में जाओगे तब यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी और कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी. क्योंकि आज आप बनाओगे 3 फरवरी की न्यूज़ तो ऑल द 5 न्यूज़ विल सीम रेलेवेंट टू कि यार 5 आ सकती हैं क्लैट पे. तो लेकिन एज द टाइम पासेस बाय, जैसे जैसे मॉक्स होते जाते हैं, टाइम निकलते जाता है, एंड व्हेन यू लेट्स से आर गोइंग टू रिवाइज इन मार्च, फिर आपको आइडिया लगेगा कि यार दिसंबर में तो ये 5 में से 2 ही न्यूज़ काम की है, ये दूसरे वीक में से तो एक भी न्यूज़ काम की नहीं है, इसमें तो एक ही न्यूज़ काम की है. तो वो टाइम के साथ होगा. तो इसमें द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि स्टिक विथ लिमिटेड सोर्सेज, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विथ, व्हाटएवर इज गिविंग यू गुड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड ट्राई टू रिवाइज रिलीजियसली एंड add at every revision. Try to broaden that news at every revision. So this was my strategy for current affairs. It is similar for both. It's similar for both of them. For somebody who's starting right now and for somebody. हाँ, time frame अलग हो सकता है कि the person who is in drop can वो chance नहीं लेगा, तो he will go from October to April, or let's say November from April. But if you're preparing from now, you're giving along with your boards and you have not prepared before, so you should stick initially to December to April time frame. So basically you meant कि it's the same for both who is starting right now and for somebody who has been preparing so far. So one thing that I really liked now that you beautifully highlighted is, and that is the advantage that I see for the droppers. क्या जब हम मई जून जुलाई में प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं और हम दिसंबर तक प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, मे बी वहां तक जो हम चीज प्रिपेयर करते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर जो वो स्किल सेट हम डेवलप करते हैं ना कि हमें दिखता है कि ये 5 में से कौन सी न्यूज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, that is the skill that we develop, and that is the most important thing that we use for the next 5 months, maybe which a fresher might not. Right, so not to demotivate any freshers, if you'll start reading, if you'll give a lot of mocks as the droppers have been doing, you'll develop that skill, and that is the most important thing that you need to develop for GK. It's not the quantity of material that you are studying, but it's about the quality that you choose to study. So मेरे लिए क्या था कि I had something like 2 to 3 sources which formed the ground for me. It was like अगर ये 2-3 sources है, ये तो अच्छे से आने चाहिए बाय हार्ट. इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डाइमेंसिफाई करते हैं so that हम कोई मिस आउट ना कर रहे. ठीक है, दृष्टि में कई बार क्या होता है यार बहुत अच्छे से कोई एस्पेक्ट कवर्ड है बट कहीं ना कहीं कुछ चीज छूट जाती है ना, विच यू सेड कि आप रिवीजन नोट्स कर रहे हो तो आप तब ऐड करो. बट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं साथ में कोलैबोरेट करता था और जब मैं उसको सेकंड टाइम पढ़ता था, थर्ड टाइम पढ़ता था, वो चीज मेरे को खुद याद हो जाती थी बाय वे ऑफ स्टडिंग फ्रॉम सम थर्ड और फोर्थ सोर्स. क्योंकि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब फर्स्ट टाइम किसी टॉपिक को पढ़ रहे होगे मे बी उसमें आपके पास 15 मिनट्स चाहिए, बट व्हेन यू आर रीडिंग इट फ्रॉम सेकंड सोर्स तो आपका टाइम जाएगा 7 मिनट्स. व्हेन यू आर रीडिंग इट फ्रॉम द थर्ड सोर्स आपका टाइम जाएगा 3 मिनट. व्हेन यू आर रीडिंग फ्रॉम द फोर्थ सोर्स आपका टाइम जाएगा 1 मिनट. तो टेक्निकली चारों बार 15 मिनट जाता नहीं है और आप बाय वे ऑफ रीडिंग इट अगेन यू आर रिवाइजिंग द एस्पेक्ट, आपको बाय हार्ट याद हो जाए. तो दैट यूज्ड टू बी द स्ट्रेटजी फॉर मी कि भाई आप मल्टीपल रिसोर्सेज कवर कर रहे हो ना, दैट इज जस्ट अ वे ऑफ रिवाइजिंग. बाकी आई रियली लाइक द स्ट्रेटजी दैट वी यूज्ड फॉर रिवीजन. आई ऑनेस्टली रिकमेंड टू एवरीवन, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो ना
तो आप 2 घंटा लगाओ, 3 घंटा लगाओ डेली जीके के, आप नोटबुक्स भर रहे हो बट आप अपने दिमाग में कुछ नहीं कर रहे। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर में क्या पढ़ा था किसी को याद नहीं है अगर आप रेगुलरली उसको रिवाइज नहीं कर रहे। और लास्ट डेट पे जब आखिरी मंथ में आप वो पूरी नोटबुक लेके बैठोगे, आप सिर्फ रो रहे होगे, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि नोट्स तो मैंने बनाए हैं बट मेरे को ये याद नहीं है कि इसमें लिखा क्या। एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। दिस इज कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो yeah, this is the thing for GK. The piece of advice that I have. Anything to add? But Maki, one thing for fresher ki they can rely on the important topic list. Ki agar if you don't have the time to figure out ki what is important, then you can go and rely on the important topic list, which I think today every coaching classes is providing. True, very true. And priority का तो यही है कि भाई जितना करंट होगा that important. ठीक है, अगर हम लास्ट के अप्रैल की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि आप लास्ट के 5 मंथ्स कवर कीजिए। एक चीज ये भी है कि भाई अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना कि आप अक्टूबर नवंबर कर सकते हो, जस्ट बिकॉज यू कैन कवर दैट डज नॉट मीन दैट यू नीड टू नेसेसरली कवर दैट। ठीक है, क्योंकि आई विल रादर फोकस ऑन एक्चुअली लर्निंग व्हाट इज देयर इन दोस 5 मंथ्स। मैं अगर इधर उधर बिखरता रहूंगा ना, मैं रास्ता खो जाऊंगा, मैं अगले 5 महीने जिनकी वेटेज ज्यादा होने वाली है तो वो भी नहीं कवर कर पाऊंगा। हाँ, so that's the thing that I have for GK. Let's move to the next section. Let's cover logic. Logic is like it is a great help in new pattern. Ki logic में you can like build along with the English. So जब आप when you are preparing your reading comprehension, you are preparing for logical reasoning as well. But an additional thing that you have to do in logical reasoning is you have to build certain theory अराउंड द क्रिटिकल रीजनिंग। जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस टाइम के, लेट्स से असम्पशन हो गया और जो भी स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग हो गया, बोल्ड फेस हो गया, तो इनके अराउंड देयर इज द थ्योरी एंड देयर इज अ वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चंस। तो वो आपको सबसे पहले यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू go through it twice or thrice. Like it can be given by coaching, it can be provided in your coaching modules. Yeah, you can download a certain book from GMAT or LSAT practice thing. You can do that. So once you are done with theory, if you are starting fresh, then also you have to do with the theory. And if you are preparing from now, if you are not done theory, then I would highly suggest कि first go through the theory. कि पहले theory आप उसको be thorough with your critical reasoning theory and what you are going to do in the critical reasoning questions. Then once you are done with it, you can apply it in the practice questions. The practice questions you may get them from your coaching materials or coaching institutions, or you can download it from GMAT or LSAT. Again, the key in this here is to go through the explanation. If you're not going through the explanation, you are not going to understand कि what happened in that question. तो बिना explanation वाले question नहीं करने हैं। जिस question में explanation दिया है, try to read explanation for every answer. Even if your answer is right, then also go through the explanation and apply your theory in your these practice questions. तो logic में तो simple सा फंडा ये है, you don't need to practice analytical especially, लेकिन if you go by the sample papers released in 2020, then they had some analytical questions to be on your safer side. If you are a dropper, you can go through की data arrangement question कर लो, because that will help you in ALET as well. So you can be comfortable with it. तो data arrangement questions, syllogism वगैरह question, be thorough with Venn diagram. So this will complete your logical reasoning thing. And as far as like वो comprehension वाला part, वो तो यहाँ पे help करना ही करना है. तो be good with your comprehension, be good with your vocab and apply the theory of LR. तो LR तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. न्यूज़पेपर अपना ब्रह्मास्त्र है भाई, कोई भी सब्जेक्ट में जीके में वहाँ से क्वेश्चन एलआर में भी आने वाले हैं. एंड वन स्ट्रेटजी आई कैन सजेस्ट यू, जो मैं करता था, लाइक यू कैन डू इज कि इसमें थोड़ा सा नुकसान ये है कि इसमें अपने पर रिलाई करना पड़ता है. तो इफ यू हैव एन एडिटोरियल, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रैंडमली अंडरलाइन सम लाइन इन दैट एडिटोरियल. अब उसको पढ़ते टाइम आप समझने की कोशिश करो कि क्या है. इज इट अ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, इज इट अ प्रमाइज टू सम कंक्लूजन, इज इट अ कंक्लूजन इन इटसेल्फ, इज इट लाइक व्हाट रोल डज इट प्लेइंग इन कनेक्शन टू द नेक्स्ट लाइन, व्हाट रोल डज इट प्ले इन कनेक्शन रिलेशन टू द प्रीवियस लाइन. तो ये आप प्रैक्टिस करते कर सकते हो. उसमें दिक्कत ये है कि इसका आपको आंसर नहीं मिलने वाला है, तो आपके खुद के जजमेंट पे आपको रिलाई करना पड़ेगा कि यार ये क्या हो सकता है. तो उसमें बस ये है कि यू विल बी डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो वो आपकी स्किल्स डेवलप कर सकता है. बस वो डिसएडवांटेज है कि इसमें सॉल्यूशन नहीं. लेकिन अगर इफ यू हैव वेरी गुड मेंटर या पर्सनल मेंटर वगैरह है जो कि टाइम निकाल के आपको इसमें हेल्प आउट कर सके, तो इट इज़ वेरी ग्रेट. बट इन मोस्ट केसेस होगा नहीं. तो व्हाट यू कैन डू इज कि एक रीडिंग करो इंग्लिश के लिए, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन आपका ट्राई करो. फिर एक और रीडिंग कर सकते हो जिसमें अंडरलाइन वगैरह करके ये ट्राई कर सकते हो. इफ इट वर्क फॉर यू, इफ इट इंटरेस्ट यू, और ट्राई कर लेना. यार ये तो है कि भाई अब रिसोर्सेज की लिमिट नहीं है. अगर आपके पास नहीं है तो भाई टेलीग्राम पे आ जाओ, मॉक्स भी मिलते हैं वहाँ पे, सब जीके की चीजें मिल रही है. एंड जब ब्रह्मास्त्र हमारा जीके हो चुका है, ब्रह्मास्त्र हमारा न्यूज़पेपर हो चुका है, तो फिर हमें क्या जरूरत है और किसी चीज की. भाई अब देखो, रोहित ने ये भी सिखा दिया कि आपको एलआर कैसे करनी है न्यूज़पेपर से, एडिटोरियल के थ्रू. एंड आई थिंक दिस इज अ रियली गुड स्ट्रेटेजी. आप जैसे जैसे थ्योरी पढ़ोगे आप उससे मैच कर लोगे. एक बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा अगर थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, दैट वुड बी एमके पांडे. अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ वेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन अबाउट दिस बुक, बट मेरे को इसने थ्योरी वाइज बहुत हेल्प किया. अगर मेरे को समझना था कि भाई कंक्लूजन, असम्पशन और ये चीजें, इन्फ्लुएंसेस किस तरह से निकल रहे हैं. इसकी थ्योरी बहुत शॉर्ट है पर काफी अच्छी है. क्वेश्चंस में आई गेस देयर आर अ फ्यू एरर्स व्हिच आई विल एक्नॉलेज एज वेल.
बट अगर आपको इससे स्टार्ट करना है ना, बहुत इजीली मिल जाएगी और आपको बुक भी बहुत आसानी से मिल जाएगी. तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज फॉर एलआर, बट दिस इज मोस्टली फॉर द स्टेटमेंट बेस्ड थिंग. बट अब जो हमारा क्लैट में आ रहा है विच इज मोर ऑफ पैसेज बेस्ड, प्रिंसिपल यही लगना आपका. अगर आप ये थ्योरी समझोगे और आपको वो कंप्रीहेंशन स्किल्स होंगी आपकी, आप धीरे धीरे इंप्रूव कर लोगे. अब एक चीज सीआर की मेरे साथ जो थी कि इवन टिल द लास्ट मंथ आई वाज नॉट स्कोरिंग रियली गुड इन सीआर. लास्ट मंथ में आई वाज वेरी टेंस कि भाई मेरे सीआर में मार्क्स नहीं आ रहे, टू द एक्सटेंट कि कई बार ऐसा होता था कि भाई अगर 30 मार्क्स का सेक्शन आ रहा है तो कभी 10-12 मार्क्स भी आ रहे. एंड देन व्हाट आई डिड वाज कि आई ट्राइड टू ब्रेक इट डाउन. आई एनालाइज्ड एवरीथिंग कि भाई मैंने मॉक्स में क्या गलतियां करी हैं. एंड जब मैंने अपने मॉक्स से सीखना शुरू किया ना कि यार सीआर का क्वेश्चन क्या आ रहा है, मैं आगे इंप्रूव करता चला. To the extent where I've scored 28, 29 out of 30 as well. And that was just in the matter of 2 to 3 weeks, just happening in the last month of my preparation. So that was a huge boost for me, क्योंकि मैंने वहां से सीखा कि भाई अंडरलाइन करके क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है. कई बार सीआर में हमारा क्या होता है कि एक छोटा सा की टर्म होता है जो आपको पूरा आंसर दिखा देता है कि भाई क्या चीज है. तो वो चीज आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो सीआर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. आई डोंट थिंक सो सीआर बहुत बड़ा इशू होने वाला है. कंप्रीहेंशन सुधार लो, पूरा क्लैट का पेपर निकल जाए. ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू क्वांट. उसमें थोड़ा आई वुड लव टू ऐड इन दैट लॉजिकल रीजनिंग थिंग जो मैंने छोड़ दी थी कि एक बुक है, इफ यू लाइक यू कैन श्योरली गो विद एमके पांडे एंड यू कैन ट्राई अनदर बुक एज वेल, कि वो है मैनहट्टन वालों की है फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, जीमेट फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, उसकी मैनहट्टन वालों की है वो. लाइक आई कैन लाइक इफ आई विल लुक फॉर इट इनटू माय मोबाइल और लैपटॉप, अगर वो होगी तो मैं विल प्रोवाइड इट टू अनुराग, एंड इफ ही कहीं होगा तो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे अगर कहीं मिल रही होगी तो. और मैंने भी गूगल से करी, तो थोड़ा जुगाड़ तो यार आपको करना पड़ेगा, लॉयर बनने वाले हो तो गूगल कर लेना, मैनहट्टन जीमेट करके प्रेपरेशन करके, बहुत अच्छी बुक है. लाइक मेरे भी, जैसे अनुराग ने कहा कि उसके स्कोर नहीं आ रहे थे, वैसे मेरा भी नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा स्कोर किसी और चीज़ से बढ़ा. उसका एज आई सेड कि डिफरेंट टॉपर, मतलब डिफरेंट जिन्हें क्लियर करा उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है. उसकी स्ट्रेटेजी ये थी कि उसने he analyzed the mock and he figured it out कि इसके साथ कहाँ गलती हो रही है. What I did was कि मैंने ये बुक बहुत अच्छे से पढ़ी और इसमें इतना अच्छा दिया था कि I was like very confident about LR after reading this. तो ये बुक पढ़ने के बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार क्रिटिकल रीजनिंग में तो नहीं होने वाली गलती, भले दूसरी जगह हो जाए. तो इट इज़ अ वेरी गुड बुक एंड लाइक आई again I will name it out कि it's about like Manhattan critical reasoning, Manhattan GMAT critical reasoning, something like that. Try to find it on Google. It is worth reading. Perfect. Now we'll move to the most hated section, I should say, quant, and then we'll move to legal, maybe the favorite section of a lot of people. So yeah, let's cover quant. तो हम तो दोनों PCMs हैं. तो what was the scenario with you in quant and कैसे कैसे क्या मेरे साथ थोड़ी दिक्कत हो गई थी, पता हुआ क्या, लाइक 2019 में मैंने गिव क्लैट, तो क्वांट वाज मैं कि भाई क्वांट तो कर ही लूंगा मैं, कुछ भी हो जाए क्वांट में वो करना है. तो 2019 में द सीन वाज कि आई स्किप्ड होल इंग्लिश और आई, मतलब इंग्लिश वाज माय वीकनेस, तो आई फोकस्ड ऑन माय क्वांट और क्वांट में ज़्यादा टाइम दिया एंड आई डिड लॉजिकल रीजनिंग और ये सब किया. लेकिन बाय द एंड ऑफ 2020 का प्रिपरेशन इंग्लिश वाज माय स्ट्रांग पॉइंट एंड क्वांट मेरा हो गया था कि भाई इसमें तो बचा लो अब, मतलब इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन जो कॉन्फिडेंस पहले था वो कॉन्फिडेंस कर गया था, क्योंकि ये मिस्टेक मैंने करी थी कि वीक सब्जेक्ट तो स्ट्रांग हो गया, लेकिन जो स्ट्रांग था वो वीक हो गया क्योंकि टाइम नहीं दिया. तो ये गलती आप मत करना. लाइक प्रिपेयर योर क्वांट एंड लेट अस कम टू यू टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट क्वांट और फिर मैं बताता हूं प्रिपरेशन का मेरा. वही है कि यार अपना जो सेक्शन है उसको थोड़ा ब्रश अप करते रहो. क्वांट का ये सिनेरियो था कि because I was from PCM, the entire analytical part, the mathematics part was something that I had as an advantage. जब मैंने CLAT 2019 दिया था without any preparation, I was able to do both these sections क्योंकि वो analytical skill develop करी थी. Because since like my childhood, I've been giving Olympiads वगैरह, तो वो analytical reasoning वाला math वाला part कभी difficult हुआ नहीं मेरे पर्सनली. ठीक है, तो उसमें क्या है कि बाकी पीसीएम से था. आई डोंट थिंक सो पीसीएम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. जब हम 12th में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आ नहीं रहा होता है. आता वो है फिर जो हमारा सिंपल सी कैलकुलेशन होती है ना. बस एक ही होता है कि जो पीसीएम से है ना, वो क्या होता है कि जो बाकी लोग है ना, देयर इज अ फोबिया, वो थोड़ा कैलकुलेशन का फोबिया बना लेते हैं अपने अंदर. नहीं तो बाकी हम लोग भी वो सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं. भाई पाइप्स एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है या टीएसडी का कोई क्वेश्चन है, वो सिंपल कैलकुलेशन है. अब मेरे ख्याल से तो अब इतना सिंप्लीफाई कर दिया, इतनी सारी कोचिंग आपको ट्रिक्स भी प्रोवाइड कर रही है कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला करो, ये करो. बल्कि मेरे को फॉर्मूला वाला कंसेप्ट बहुत अजीब लगता है. 100 फॉर्मूला याद करने के बजाय कि भाई आप एक सिंपल सी चीज समझ लो, कंसेप्ट लगाओ और जल्दी सोल्व हो जाएगा, है ना. टीएसडी हो, आपका टाइम एंड वर्क हो, पाइप्स एंड सिस्टम. तो क्वांट के लिए मैं क्या कहूंगा, जिन लोगों को थोड़ा अभी भी डर लगता है, ठीक है, आपका डर है बिल्कुल जायज है. कुछ 10-12 टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रीवियस ईयर्स उठाओगे ना, एक काम करो, लिस्ट बनाना शुरू कर दो कि कितने क्वेश्चंस आ रहे थे. जब आप देखोगे ना कि एक साल में ही 3 क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क के आ रहे हैं, आप समझ जाओगे टाइम एंड वर्क के कर लिया तो मैं 30% सेक्शन कर लूंगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप इस तरह से 8-10 टॉपिक हाईलाइट कर लो और उनको कवर कर लो. किसने कहा कि आपको सर्कल के एरिया का फॉर्मूला याद करना है? अगर आपको डर लगता है तो क्या पता वो आता ही ना हो, जाके देख तो लो.
तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपको थोड़ा सा अगर मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो द थिंग दैट आई रिकमेंड इज ऑब्वियसली अब है तो थोड़ा डीआई का सेट्स आपको थोड़ा आना चाहिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप बहुत कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो गए, इट्स मोर अबाउट कैलकुलेशन। तो अगर आप फोकस करोगे आप अपनी कैलकुलेशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्विक कर सकते हो, तो बहुत इजीली हो जाएगा। बहुत बार तो क्या होता है कैलकुलेट नहीं करना, सिंपली अगर कोई आपके पास फ्रैक्शन आ रहा है 237/327, अब आपके पास वो ऑप्शन डेसिमल्स में है, सारे डेसिमल 1 से अबव दिए हुए हैं, कुछ 1 से नीचे दिए हुए हैं। अगर मैं सिंपल अपनी मैथमेटिक्स लगाऊं, मेरे को पता है इसका जो डेसिमल पॉइंट आने वाला है वो 1 से कम आने वाला है, व्हाई वुड आई इन्वेस्ट टाइम टू एक्चुअली कैलकुलेट द एग्जैक्ट रेशियो? तो ये चीज है कि आप धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो समझते हो। तो ये चीज है मेरी तरफ से मैथ्स के लिए, बाकी रोहित बताएगा। It is especially, I guess, for those who are preparing for a little bit of time and those who have a good command over maths. उनके लिए पहले मैं थोड़ा एक चीज़ बता दूं जो मुझे काफ़ी हेल्प करी थी कि there are like quantitative जो DI के पैराग्राफ हैं, SBI PO IBPS PO प्रीलिम्स मेंस इनमें बहुत अच्छे आते हैं। तो इनके पूरे YouTube पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, इनका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ट्राई सॉल्विंग दोस क्वेश्चन, और उसको भी ऐसे करना कि यार बिफोर जंपिंग टू लाइक DI ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस या स्पीड एंड टाइम एंड वर्क, तो उसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, पहले वन लाइनर्स क्वेश्चन कुछ कर लो, लाइक व्हाटएवर द कोचिंग मटेरियल है और फ्रॉम द RS अग्रवाल और फ्रॉम अरिहंत की मैथमेटिक्स, ट्राई टू बी गुड एट द कॉन्सेप्ट, वन लाइनर्स कुछ प्रैक्टिस करो, उसके बाद जंप टू द DI। और DI वो प्री और मेंस वाले, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे कैलकुलेशन और उसमें बहुत अच्छा दिमाग लगने वाला है तुम्हारा तगड़ा, क्योंकि उसमें बैंक के साथ सीन ये है कि उसमें भले अकल ना लगे, कैलकुलेशन बहुत लगती है, तो उसमें एक फायदा है कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, और दूसरा ये कि अगर उसको टाइम फ्रेम में करोगे तो जल्दी से दिमाग लगाना पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाएंगे। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि यू हैव टू बी थॉरो विद द परसेंटेज और फ्रैक्शन वाला सीन, क्योंकि न्यू पैटर्न में न्यू क्वांट वाला जो आपका DI है, इसमें परसेंटेज आपकी फिंगर टेस्ट होनी चाहिए, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। परसेंटेज और फ्रैक्शन वाला जो खेल होता है कि भाई 1/3 इंटू परसेंटेज या 1/7 इंटू परसेंटेज, 1/12 इंटू परसेंटेज, कितना कितना बनेगा, वो सब आपको प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो आपका न्यू पैटर्न है इसमें ज़्यादा आपको दिमाग उतना भी लगाना नहीं है मेरे हिसाब से। तो वन लाइनर में फिर भी कहीं फंस सकते हो या कुछ हो सकता है, इसमें तो ऐसा है कि अगर आपको दिया हुआ है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर धड़ाधड़ लगाते हैं, इसमें टाइम सेविंग होती है। अगर आप जैसे अनुराग ने कहा था, अगर आप जैसा दिमाग लगाना सीख जाओ या प्रैक्टिस के साथ, तो फिर बहुत टाइम बचता है, उसमें हो जाते हैं क्वेश्चन। बेसिकली पॉइंट के लिए नथिंग बीट्स यूट्यूब वाले टीचर जो IBPS और वो सब पढ़ा रहे हैं बिल्कुल मस्त ट्रिक के साथ कि बच्चों ये करना है 2/3, ये डन, सीधा सॉल्व। क्योंकि वो यार उनका सीधा फंडा ही है ना कि उनको टाइम बचाना है, क्योंकि उस पर जो वनडे एग्जाम में जो बच्चे बैठ रहे हैं उनके पास टाइम ही नहीं है, अपने पास तो फिर बहुत टाइम है क्लाइट में, उनके पास तो उतना भी नहीं है, तो वो उस हिसाब से अप्रोच करवा दें, तो वहाँ से बेनिफिट मिलता है। वेरी ट्रू, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ हेल्प और फॉर दिस। दूसरा ये है, एक और चीज जिनके लिए दोस्त की जो दोस्त हैव गिवन देयर होप ऑन मैथमेटिक्स, उनके साथ ये ट्राई कर सकते हो कि मैथमेटिक्स में 3 DI के क्वेश्चन आने वाले 5-5 नंबर के, तो रादर देन स्टिकिंग ऑन वन, लाइक उसमें आपको पहले से मेरे मतलब आखिरी मेरे साथ ये हो रहा था कि मॉक में तीनों अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, और तीनों करने जा रहा था, तो मेरा बहुत कुछ छूट गया, 2 छूट जा रहे थे, पहले मैं अटक गया था, फिर 2 छूट गए, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को करने 2 ही है, मैं एक तो लाइक मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा तो ही करूँगा, नहीं तो मैं तो 2 ही करूँगा। तो उसमें होता था कि मैं जो अपना जो कंफर्टेबल जिसमें था, जैसे मेरे को टाइम परसेंटेज के क्वेश्चन अच्छे बनते थे तो उसको उठाया पहले मैंने, या टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया उस पैराग्राफ उठा ले। तो ये कर सकते हो कि अगर मैथ्स में आपको बिल्कुल हार्ड डीला है, हार्ड टाइट है, मतलब कि यार भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है, तो ट्राई टू फिगर आउट कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आप कर सकते हो। तो 15 में से आपने 5 या 7 नंबर का DI कर दिया और बाकी आपने उधर अच्छा स्कोर करा, तो आपका काम हो चुका है। और अगर उसकी जगह आप पूरा छोड़ोगे या पहले क्वेश्चन पे अटक जाओगे तो वो उसमें कोई सेंस नहीं है। तो फिगर आउट कि आप कहाँ अच्छा कर सकते हो उसको कर लो, फिर बात की बाद में देखेंगे क्वांट में। तो के ये लिए उसके लिए मेरी उनके लिए जिनका मैथ्स में थोड़ा टाइट हो, जो कंफर्टेबल है, फिर तो पूरे मारो यार 15। बट इसमें ना थोड़ा सा जो मेरी स्ट्रेटजी थोड़ा जो आइडियोलॉजी थोड़ी जो डिफर करती है वो इस एस्पेक्ट में करती है। ऑल्दो मैं तो मैथ्स में स्ट्रॉन्ग था, तो अगर मैं कहूँ कि भाई 15 के 15 करने चाहिए, दैट वुड बी अ लिटिल डिफरेंट थिंग। बट इफ आई हैड टू से कि अगर मेरा कोई सेक्शन वीक होता, इफ आई हैड बीन इन देयर सिनेरियो और मेरे को मैथ्स कवर करना होता ना, मैं दूसरी चीज क्या बताता कि यार इट्स अ गुड स्ट्रेटजी कि आप 2 पैसेज पे फोकस करो 3 में से। बट आई रेदर रिकमेंड ना, ऐसा हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चन एक बार देखो। और इससे मेरा सिनेरियो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि देखने एक के बाद ही, आपका एक DI ऐसा हो सकता है जिसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड थे, आप उनको जाके करो ना, आप क्यों पूरे को छोड़ रहे हो? क्या पता आप इसमें से 4 कर सकते हो, इसमें से 4 कर सकते हो, इसमें से 4 कर सकते हो, और आप टोटल में 12 क्वेश्चन बना दो और वैसे आप 10 बना पा रहे हो, है ना, और टाइम कम लगे। क्योंकि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो हर DI में वो ऐसा देते हैं कि बच्चे का टाइम कम है। क्योंकि when it comes to competitive exams, it's not just about attempting the questions, it's also about how do you leave questions and which questions do you leave. अगर आप वो जो जो जहाँ पे आपके ऑब्स्टेकल्स है ना, अगर आप वहाँ फंसते नहीं हो, एक दलदल है, आप उसमें जितना डेप्थ में जाओगे ना, आपको लगता है मैंने 1.5 मिनट दे दिया यहाँ पे, और बस 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 होने वाला है ना, कर ही लेते हैं कर ही लेते हैं, कब 2.5 मिनट चल जाती है, कब 3 मिनट चल जाती है, वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाती है कि भाई 3 मिनट में तो 4 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। दैट शुडंट बी इन द सिनेरियो, क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि कहाँ पे हमारे वो हर्डल्स हैं, कहाँ पे हमारे वो ऑब्स्टेकल्स हैं, हमको वो आइडेंटिफाई करना रहना चाहिए।
तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से पैरेलली करता हूँ. नाउ आफ्टर कवरिंग क्वांट, लेट्स कम टू लीगल. लॉ स्टूडेंट्स का फेवरेट, लॉ एस्पिरेंट्स का फेवरेट. ठीक है, लॉ स्टूडेंट्स का तो नहीं कह सकता मैं, बट लॉ एस्पिरेंट्स का फेवरेट रहता था उस टाइम पे. तो रोहित, लीगल के बारे में क्या कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाए न्यू पैटर्न के लिए? लीगल में माय स्ट्रेटजी इज क्वाइट सिंपल कि सबसे पहले तो आई वेंट थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर. तो मुझे समझ में आई क्वेश्चन बनते किस टाइप से, प्रीवियस मतलब लीगल के क्वेश्चन बनेंगे किस टाइप से, कि अगर प्रिंसिपल देके फैक्ट्स में से किस टाइप से क्वेश्चन बनाने वो. वंस यू आर डन विद दैट और सैंपल पेपर में से आपने फिगर आउट कर लिया किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं किसी लीगल बेसिस से, देन यू कैन गो टू लाइव लॉ एंड बार एंड फिर उसको उस एंगल से पढ़ो कि इस टाइप के क्वेश्चन इसमें कहाँ फंसा सकते हैं. बस वही थी प्रीटी सिंपल. या फिर वो कोई लीगल के ओपिनियन की चीज़ पढ़ते रहो. और आई डोंट थिंक कि अब आपको ज़्यादा बेयर एक्ट वगैरह या मतलब जो पहले कोचिंग वाले पूरा पढ़ा देते थे सिलेबस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का, टॉर्ट वगैरह का, क्रिमिनल का, उसमें जाने की जरूरत नहीं है. एंड नीदर इट इज द आइडिया फॉर द कंसोर्शियम टू आस्क यू ऑन इट. तो बी लाइक बेसिक्स कर लो, बेसिक्स आना चाहिए, और बाकी भी रीड करते रहो जो आपके लीगल के पेजेस हैं और क्वेश्चन आपकी कोचिंग वाले दे ही रहे. जस्ट दिस वाज माय स्ट्रेटजी फॉर लीगल. बेसिकली यही है कि थोड़ा सा जैसे कि आपका कोई नया एक्ट आ रहा है, कोई नया स्टैट्यूट आ रहा है, आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोई नया प्रोविजन आ रहा है. जैसे हमारे टाइम पे सरोगेसी वाज एट पीक. तो आई रिमेंबर सरोगेसी, एमटीपीए बहुत ज्यादा आता था. ठीक है, फार्म्स बिल वगैरह पे बहुत आता था, क्योंकि ये चीजें ऐसी थी जो उस टाइम पे न्यूली प्रपोज हो रही थी, एंड दीस वर द हॉट टॉपिक्स. एंड आई गेस इसमें कुछ क्लैट में हमारे टाइम पे आया भी था. आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर क्या था, बट व्हेन इट केम डाउन टू एक्चुअली अटेम्प्टिंग लीगल बड़ा इजी आया था. आई वाज फ्रॉम लीगल एज, तो वहाँ के बड़े लेंदी रखते थे पैसे. तो मेरे मन में ये हो गया था लीगल का एक तो छूट नहीं है, कैसा भी पैसे लगाए. वहाँ देखा तो मैंने लीगल आई अटेम्प्टेड इन लास्ट, दिस वाज द मिस्टेक आई डिड इन क्लैट. फिर बाद में रियलाइज लीगल तो बहुत इजी था, उसको बीच में कर लेते पूरा हो जाता. So this was the mistake I did. For our client, I remember GK took me like 25 minutes, and it never took like more than 5 minutes, because it was like, why so and so thing has been happening in Afghanistan, and why opinion पूछे थे. Yeah, it was more of an opinion based. Even if you read that question, आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने में 1 मिनट अच्छी खासी लगती थी. तो this is something very important. Although हमने mostly I guess सब्जेक्ट कवर कर लिया, लीगल के लिए मैं एक चीज यही कहूंगा कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरह से अपने लीगल को एनालाइज करते आ रहे हो. आपको पता होना चाहिए कहाँ पे येस और नो आना चाहिए. दूसरी चीज, जब आप पैसेज रीड कर रहे हो, आपको वहाँ इंपॉर्टेंट रीजनिंग हाईलाइट करनी है, सो दैट आप वो बाद में क्वेश्चंस में रिफ्लेक्ट कर पाओ कि भाई अगर येस आंसर है ना, इन दो येस में से कौन सा वाला रीजनिंग बेटर सूट कर रहा है अकॉर्डिंग टू माय पैसेज, which is the best trick when you have to crack any legal wala passage, which actually helped me and has helped a lot of people. ठीक है, now the most important thing is कि जब हम पेपर देने जा रहे होते हैं ना, हम भाई बिल्कुल सोच के जाते हैं कि 10 मिनट जीके को देंगे, 40 मिनट हम लीगल को देंगे, बट ऐसा होता नहीं है. एंड व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट ना, आई हैव सीन 2020 में हैपनिंग, लोग रो रहे थे यार. लाइक पहले आधा घंटा होने के बाद लोग रो रहे थे बिकॉज जिस तरह से पेपर सोचा था उस तरह से नहीं हुआ था. एंड दैट इज द टेस्ट ऑफ टाइम. व्हेन यू आर बीइंग टेस्टेड इन दैट प्रेशर, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप करो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, सिर्फ आप अकेले उसको 25 मिनट में नहीं कर. अब जैसे ये चीज थी, मेरे को नहीं पता था कि रोहित को भी 25 मिनट लगे, बट अगर आज हम बात कर रहे हैं तो रोहित को भी 25 या 30 मिनट ही लगे थे. क्यों? क्योंकि वो सेम पेपर सबको आ रहा है. और अगर आपने पूरे साल प्रिपेयर किया है, उसने भी पूरे साल प्रिपेयर किया है, उसके पास कोई अद्भुत शक्तियां नहीं है, जितना टाइम उसमें जेन्युइनली लगना चाहिए लगना चाहिए. ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे आपकी जो स्ट्रेटेजी है ना, बहुत कस्टमाइजेबल होनी चाहिए. कि आप पेपर देने जा रहे हो, वहां पे कुछ भी आपको एकदम से रोड ब्लॉक हिट करता है ना, यू शुड नो कि मेरे को किस तरह से अपनी गाड़ी को यहाँ पे बचाना है. क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप रोड पे जा रहे हो तो सिर्फ आपकी सेफ्टी है. अगर गलती से कोई और गाड़ी सामने से उल्टा सीधा आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमें भी लेफ्ट लेके अपनी जान बचानी है और कैसे बचानी. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दीज स्ट्रेटजीज. उसमें लाइक इज इट 2020 या पेन एंड पेपर? 2022 का पेन पेपर है या ऑनलाइन है? आई गेस इट्स पेन पेपर, आई गेस. कि बहुत जल्दी हो जाएगा. लाइक अपने में ऑनलाइन में दिक्कत ये थी कि यू कांट गो टू लीगल एट द वंस और उसको देख के आओ. मतलब वो थोड़ा लेंथ. पेपर में ऐसा है कि यू कैन स्किम फट से पन्ने, लाइक यू पन्ने पलटा ले. हमारे टाइम तो पता नहीं, वो मार्क फॉर रिव्यू एंड समथिंग हैपेंड. A lot of people mark for review, but that was very explicit. That was very explicitly written that mark for review would not be calculated. But happened really bad with a lot of people because mostly exam में mark for review calculate होता है. ठीक है, लोगों ने स्ट्रेस में, प्रेशर में नहीं किया. This is the most important lesson that I also give. एग्जाम बहुत दिए होंगे, मॉक बहुत दिए होंगे, बट जो पेपर हो रहा है वो मॉक नहीं है. सेम इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे, इंस्ट्रक्शन जाके जरूर पढ़ना. अच्छे खासे 10-15 मिनट दिए जाते हैं, एटलीस्ट मेरे सेंटर पे तो दिए गए थे. तो और एक चीज ये है, ये स्ट्रेटेजी मैंने पता नहीं कैसे सोची थी, बट इट हेल्प्ड मी. क्या होता है, आप एग्जाम देने बैठते हो, शुरू करते हो, आधे लोग क्या होते हैं, बिल्कुल पूरे क्लैट सेंटर में मस्ती कर रहे हैं, इधर हाय हाय राहुल कैसा चल रहा है, सब कुछ क्या चल रहा है, बिल्कुल. दूसरे लोग क्या होते हैं, जो शांत से बैठोगे, आपके सामने इंस्ट्रक्शंस है, क्या वो एक तरह का पैसेज नहीं है, आप उसको रीड करो. जैसे मैंने क्या रीडिंग पैटर्न डेवलप किया था कि आई यूज्ड टू रीड इन अ स्लॉट ऑफ 4 वर्ड्स, जिससे वो रीडिंग हो. तो उसका जो आई मूवमेंट था, ये इस तरह से मैं अपनी आईज को मूव कर रहा हूँ, मैं इंस्ट्रक्शंस पे रीड कर लेता था. उससे क्या होता था कि मैंने एक चीज देखी थी कि जो आप पहले 10 मिनट में पैसेजेस करते हो ना, उनका रीडिंग टाइम ज्यादा होता है, उनमें आपको टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि आप अपनी गाड़ी को रेस बढ़ा रहे हैं.
है ना। उसके बाद जब आप एक बार रेस पिकअप कर लेते हो, फिर आगे की स्पीड बहुत स्मूथ होती है, आप जल्दी जल्दी करते चले जाते हो। तो ये चीज जो रेस पिकअप करनी होती थी ना 0 से 100 जाने की, आई यूज्ड टू डू दिस ऑन इंस्ट्रक्शंस। तो दिस थिंग आई हैड अ लिटिल डिफरेंट। आई डोंट नो अगर ये किसी ने पहले ट्राई किया हो या नहीं किया हो, बट ट्राई करना हो सकता है आप लोगों को भी हेल्प करे। So I guess that is all. And I'll like to ask a very quick question, Rohit. तो NLS versus NLED, जब आपने चाहा था कि भाई मेरे को किस कॉलेज में जाना है, तो एक आंसर क्या आता था हमेशा प्रिपरेशन के टाइम? NLU दिल्ली। क्योंकि वो फ्यूचर रीजन के कारण, जो मतलब मेरे को देना है बाद में एग्जाम वगैरह, उसके कारण आई प्लान लाइक आई एम फॉर NLU दिल्ली। सेम सिनेरियो। तो ऐसा नहीं है कि NLS is better than NLU Delhi or NLU Delhi is better than NLS, but all of us have our different preferences. And I guess that's all for our episode for this CLAT preparation one. Thank you so much, Rohit, for coming to this episode, for telling all your strategies and preparation and the experience that you have had at NLU Delhi. I hope this would help anyone who has watched till this extent. If you're new to this channel, please subscribe. If you like this video, hit the like button, and in case you have any queries, please comment. And I hope to see you in another video. Thank you so much. Thank you, Rohit.